آج ہم وہ واقعہ سننے جا رہے ہیں جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسا لمحہ جس نے کمزور مسلمانوں کو طاقت دی، جس نے مکہ کے در و دیوار ہلا دیے۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے زمین پر عدل کی بنیاد رکھی، اور یہ فیصلہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا پورا واقعہ۔ وہی عمر جس کے نام سے عرب کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، وہی عمر جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے تھے، جس کی آواز سن کر گلیاں خاموش ہو جاتی تھیں، جس کا غصہ آگ کی طرح بھڑکتا تھا اور جس کا دل پتھر جیسا سخت تھا، لیکن جب وہ ایمان کی نور کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ سخت دل موم سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ آج ہم وہ تاریخی لمحہ سنیں گے جس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ عمر کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ یہ وہ دعا تھی جس نے تاریخ بدل دی، امت کو قوت دی اور اسلام کو وہ شان عطا کی جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت ہلا دیے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر دعوت دے رہے تھے۔ مسلمان کمزور تھے، ظالموں کے ہاتھوں ستائے جاتے تھے، کسی کو اذیت دی جاتی تھی، کسی کو پیٹا جاتا تھا، کسی پر ریت ڈالی جاتی تھی، اور انہی ظالموں کی صف میں ایک نام سب سے زیادہ سخت تھا، عمر بن خطاب۔ عمر کا قبیلہ قریش کے سرداروں میں تھا، جسم طاقتور، ہاتھ لوہے کی طرح مضبوط، آواز گرجدار۔ جب عمر غصے میں مکہ کی گلیوں میں نکلتے، لوگ راستہ چھوڑ دیتے، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام کے بارے میں عمر کا خیال تھا، یہ دین عرب کو تقسیم کر دے گا، خاندانوں میں فاصلہ ڈال دے گا، بتوں کی اہانت کرے گا۔ اس وقت عمر کو اسلام سے شدید نفرت تھی۔ ایک دن قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عبادت کو برا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں۔ اے عمر، اگر تو اس فتنے کا خاتمہ کر دے تو تیری شان میں اضافہ ہوگا۔ یہ سن کر عمر کا خون کھول اٹھا، آج محمد کو ختم کر کے عرب کو اس فتنہ سے نجات دیتا ہوں۔ عمر گھر گئے، کمر باندھی، ننگی تلوار اٹھائی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر مکہ کی گلیوں میں نکل پڑے۔ لوگ حیرت سے پوچھتے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ غراتے ہوئے کہتے، آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ مکہ کے لوگ سن کر لرز گئے، کوئی روک نہ سکا، کوئی ہمت نہ کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل تک پہنچنے کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ عمر مکہ کی گلیوں سے تیز قدموں سے گزرتے تھے کہ نعیم بن عبداللہ سامنے آ گئے۔ وہ عمر کے ارادے سے واقف تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر غصہ، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے چیخ کر کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کے قدم رک گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ اور بڑھ گیا اور وہ چیخ کر بولے، کیا میری بہن میرے گھر میں اسلام؟ اب عمر کا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی بہن کی طرف مڑ چکا تھا۔ عمر غصے سے آگے بڑھے، دل میں طوفان، ہاتھ میں تلوار، قدم زمین پر گرجتے ہوئے جب بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو دروازہ پر قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سکھا رہے تھے اور فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، آواز بند ہو گئی، خباب چھپ گئے۔ فاطمہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ عمر کمرے میں گھس آئے، غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں، یہ کس کی آواز تھی؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ فاطمہ بیچ میں آئی تو انہیں بھی چوٹ لگی، ماتھے سے خون بہنے لگا، لیکن اللہ کا نور کار فرما تھا۔ فاطمہ نے ڈٹ کر کہا، عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو چاہے کر لو، اسلام اب نہیں چھوڑیں گے۔ عمر کا غصہ لمحے بھر کو رک گیا، بہن کا خون دیکھ کر دل نرم ہوا اور وہ بولے، وہ صحیفہ لاؤ جسے پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو۔ یہ الفاظ عمر کے دل پر چوٹ کی طرح لگے اور وہ واقعی غسل کرنے چلے گئے۔ عمر نے غسل کیا، واپس آئے، صحیفہ ہاتھ میں لیا، اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی تھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ الفاظ، یہ نور، یہ تاثیر عمر کے دل میں چلے گئے۔ انہوں نے تلاوت جاری رکھی، چہرہ بدل گیا، دل پگھل گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عمر بے ساختہ ہو کر بول پڑے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا نور عمر کے دل میں اتر چکا تھا۔ خباب چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے اور خوشی سے بولے، اے عمر، خوشخبری ہو، کل رات رسول اللہ نے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن ہشام سے کسی کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اے عمر، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ عمر کا چہرہ بدل چکا تھا، اب وہ تلوار لے کر قتل کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے نکلے۔ عمر تلوار ہاتھ میں لیے لیکن دل میں نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دار ارقم کی طرف چل دیے۔ صحابہ نے دور سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، سب گھبرا گئے، کہیں پھر کوئی سختی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو آنے دو۔ عمر اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔
उमर के सीने को थामा, उनकी आंखों में देखा और फरमाया, ऐ उमर, कब तक भागते रहोगे? कब तक अपनी जान को तकलीफ देते रहोगे? क्या वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ? ये अल्फाज, ये मोहब्बत, ये रक़त उमर के दिल की आखिरी दीवार भी तोड़ गई। उमर ने कांपती हुई आवाज में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मक्का की फिजा में नारे तकबीर गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। सहाबा की खुशी का आलम न रहा। इस्लाम को ऐसा सहारा मिल गया जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मक्का की फिजा बदल गई। जो लोग पहले छुप कर नमाज पढ़ते थे वो खुशी से रोने लगे और जो उमर का नाम सुनते थे वो खौफ से सहम जाते थे। इस्लाम लाने के बाद उमर ने सबसे पहले काम ये किया, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ उमर, हम हक पर हैं। उमर ने बुलंद आवाज में कहा, फिर हम क्यों छुपकर इबादत करें? चले काबा की तरफ। फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो कभी ने ना देखा था। हजरत उमर सफ के एक तरफ, हजरत हमजा दूसरी तरफ और उनके दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश हैरान, कुछ परेशान, कुछ खौफजदा। उमर ने ऐलान किया, आज के बाद इस्लाम चुप कर नहीं होगा। ये दिन था जब इस्लाम ने खुलकर सांस ली थी। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो सब चुप कर जाते थे। जिसने भी हिजरत करनी होती थी सब चुप चुप कर जाते थे कि कहीं कोई पीछे से हमें तकलीफ ना पहुंचा दे। रात की तारीकी में निकलते थे, लेकिन उमर का अंदाज मुख्तलिफ था। वो काबा के पास गए, कुरैश के सरदार वहां मौजूद थे। उमर ने तलवार निकाली और बुलंद आवाज से कहा, जिसको अपने बीवी बच्चे यतीम करने का शौक हो, अपनी माँ को रुलाने का शौक हो, वो मेरे पीछे आए। मैं मदीना हिजरत करने जा रहा हूँ। फिर वो फखर से मदीना रवाना हो गए, लेकिन कोई पीछे आने की जुर्रत ना कर सका। ये इस्लाम की तारीख की वाहिद ऐलान करदा हिजरत थी। मदीना में उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इब्तिदाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मस्जिद नबवी की तामीर हो, मुहाजिर व अंसार की भाईचारगी हो या जिहाद की तैयारी, उमर हमेशा सबसे आगे रहते। रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते से भाग जाता है। ये उमर का मुकाम था। बदर का मैदान था। 313 कमजोर मुसलमान, सामने 1000 मजबूत कुरैश। उनके भाई आस बिन हिशाम भी मुशरिकीन की सफ में थे, लेकिन इस्लाम के मामले में उमर ने कभी रिश्तेदारी नहीं देखी। जंग शुरू हुई, उमर ने दिलेरना अंदाज से लड़ाई की और बदर की फतह में बड़ा किरदार अदा किया। उहद में मुसलमानों की सख्त आजमाइश आई। कुछ लोगों की गलती से जंग उलट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, पूरा मैदान हिल गया, लेकिन उमर साबित कदम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते रहे और दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे। जब हुदैबिया के मुकाम पर मुआहिदा होने लगा तो मुसलमान उसे सख्त मुआहिदा समझ रहे थे। शराइत मुसलमानों के खिलाफ थी। उमर के दिल में इज़्तिराब पैदा हुआ। वो नबी के पास आए और अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, हम हक पर हैं। उमर ने अर्ज किया, फिर हम जिल्लत क्यों बर्दाश्त करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता, वही मेरा मददगार है। ये जवाब उमर के दिल को ठंडा कर गया। बाद में फतह मक्का के दिन उमर ने रोते हुए कहा, मेरी उम्र भर की इबादत भी हुदैबिया की हिकमत को नहीं समझ सकती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए, ये मंजर उमर के लिए जज्बाती लम्हा था। वो शहर जहाँ कभी मुसलमानों को सताया जाता था, वो आज वही शहर शरंगो था। जब लोग बैतुल्लाह के पास बुत तोड़ रहे थे, उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जाउल हक व ज़हकुल बातिल, बातिल मिट गया। उमर के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। 2 साल बाद उन्होंने उम्मत की मजलिस बुलाकर फरमाया, मैं अपने बाद उमर को खलीफा मुकर्रर करता हूँ, वो मेरे बाद सबसे बेहतर हैं। उमर की खिलाफत शुरू हुई और जमीन पर अदल का जो निजाम कायम हुआ वो तारीख की मिसाल बन गया। उमर ने फरमाया, दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। दुनिया के किसी बादशाह ने ये जुमला कभी ना कहा। रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते, यतीमों के घर जाते, बेवाओं के घर अनाज पहुंचाते। कई दफा लोग पहचानते ही नहीं थे कि ये अमीरुल मोमिनीन है। उमर के दौर में तारीख की सबसे बड़ी फतूहात हुई। ईरान फतेह हुआ, रोम के बड़े हिस्से फतेह किए गए, मिस्र फतह हुआ, शाम फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस फतह किया गया। दुनिया हैरान थी, इतनी बड़ी सल्तनत में अदल कैसे कायम है। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो ईसाई सरदारों ने कहा, हम इस शहर की चाबियां सिर्फ उमर के हाथ में देंगे।
उमर मदीना से चले, एक गुलाम साथ एक ऊंट, बारी बारी सवार होते। जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो गुलाम की बारी थी। उमर नंगे पांव चल रहे थे, कीचड़ लगा हुआ था। ईसाई सरदार हैरान रह गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। उमर ने फरमाया, हम वह कौम है जिसने इस्लाम के जरिए इज्जत पाई। एक सुबह उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे फिरोज अबू लूलू नामी मजूसी ने खंजर मारा। उमर जमीन पर गिर गए, लोग रोने लगे। उमर ने फरमाया, नमाज मुकम्मल करो, नमाज इस्लाम का सुतून है। जब जख्म ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, आयशा के पास जाकर पूछो क्या मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन होने की इजाजत देंगी। इजाजत मिल गई। उमर ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में दफन हूँ। यूं उम्मत का अजीम सोना दुनिया से रुखसत हो गया। हजरत उमर का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता था। बाहर से वह पहाड़ की तरह मजबूत, लेकिन अंदर से एक बच्चे की तरह नरम दिल रखने वाले इंसान थे। उमर का एक जुमला तारीख में आज भी लिखा गया है, अगर आसमान से आवाज आए कि तमाम लोग जन्नत में जाएंगे और एक शख्स जहन्नम में जाएगा तो मैं डर जाऊंगा कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। ये उमर ही थे जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, लेकिन अल्लाह के सामने धाड़े मार कर रोते थे। रातों को निकलते, मदीना की गलियों में फिरकर हालात देखते, यतीमों के दरवाजे पर ठहरते, बेवाओं के घर आटा चक्की पिसवाते, बच्चों का दूध गर्म करते और कहते, ये सब कुछ उमर की खिलाफत नहीं, उमर की निजात है। एक साल मदीना में शदीद कहत पड़ा, लोग भूखे थे, बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी, जानवर मर गए थे, खजूरें खत्म, आटा खत्म, दूध खत्म। हजरत उमर ने ऐलान किया, जब तक उम्मत का आखिरी शख्स खाना नहीं खाएगा तब तक उमर घी नहीं खाएगा। महीनों तक उनके चेहरे का रंग उतर गया, पेट अंदर धस गया, दाढ़ी पर गहरे हल्के पड़ गए थे। एक दिन उनके गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपका जिस्म बहुत कमजोर हो गया है, खजूर खा लें। उमर ने कहा, मैं कैसे खा लूं, मेरे लोगों के घरों में खजूर नहीं है। ये अल्फाज नहीं थे, ये कयामत के दिन का एहसास था। एक रात उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त के लिए निकले। मदीना की एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वो रुक गए, दरवाजे के पास जाकर पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मैं पानी में पत्थर डालकर चूल्हा जला देती हूँ ताकि समझें कि खाना पक रहा है, वो इंतजार करते करते सो जाएं। उमर की टांगे लरस गई। अल्लाह तुम पर रहम करे बहन, तुमने अमीरुल मोमिनीन को खबर क्यों ना की? औरत बोली, अमीरुल मोमिनीन को हमारे हाल की क्या खबर? ये जुमला उमर के दिल पर तीर की तरह लगा। वो फौरन बैतुल माल गए, आटा, चर्बी, खजूर, गुंदम सब कुछ एक बोरी में भरा। गुलाम ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर ने कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? वो बोरी अपने कंधों पर उठाकर औरत के घर लाए। बच्चों के रोने के चेहरे जब हंसी में बदले, उमर के चेहरे पर सुकून आ गया। गुलाम ने पूछा, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? उमर ने कहा, मैं चाहता हूँ ये देख लूं कि मेरे जाने के बाद भी बच्चे हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं। दुनिया में ऐसा हुक्मरान आज तक पैदा नहीं हुआ। हजरत उमर के दौर में दुनिया की 2 सुपर पावर्स थी। नंबर 1 रूम कैसर जो था, नंबर 2 ईरान जो किसरा था। ये दोनों मजबूत, मालदार, हथियारों में ताकतवर, लेकिन उमर के दौर में दोनों टूट कर बिखर गए थे। शाम फतह हुआ, दमिश्क फतह हुआ, उर्दन फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ। रूमी सरदार हैरान, ये कौन लोग हैं? भूख भी है, थके भी है, फिर भी शिकस्त नहीं खाते। फिर बैतुल मुकद्दस का दरवाजा उमर के हाथों खुला। दुनिया ने ऐसे हुक्मरान नहीं देखा था, न देखेगी। कादसिया की जंग में मुसलमानों की तादाद कम, ईरान की फौज ज्यादा, लेकिन ईमान वाले जीत गए। ईरान के बादशाह के महलात, सोने के बड़े बड़े दरवाजे, ताज, तख्त, सोने के हाथी, सब मदीना लाया गया। जब उमर ने ये खजाने देखे तो रोने लगे। पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, आज खुश होने का दिन है, रोते क्यों हो? उमर ने कहा, मुझे डर है कि कहीं ये दौलत उम्मत को तबाह न कर दे, कहीं दुनिया का फितना हमारे दिलों में न उतर जाए। कितनी दूर अंदेश निगाह थी। एक सुबह उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे फिरोज अबू लूलू नामी मजूसी ने खंजर मारा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमीन पर गिर गए। लोग रोने लगे। उमर ने फरमाया, नमाज मुकम्मल करो, नमाज इस्लाम का सुतून है। जब उमर जख्मी हो गए, जख्म बढ़ने लगा, खून बहता जा रहा था,
चेहरा पीला पड़ गया। मदीना का हर शख्स रोता था। उमर ने पूछा, लोगों से पूछो क्या मैंने किसी का हक मारा है? लोगों ने कहा, आपने अदल किया, इंसाफ किया, कोई शिकायत नहीं। फिर फरमाया, ए मेरे बेटे, आयशा के घर जाओ और कहो उमर इजाजत चाहता है कि रसूलुल्लाह और अबू बकर के पास दफन हो सके। हजरत आयशा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, उमर मेरे वालिद के बाद मेरे लिए सबसे अजीज हैं, मैं इजाजत देती हूँ। जब उमर को ये खुशखबरी मिली तो बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। उमर के आखिरी लम्हे मदीना का हर घर रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े दुआ कर रहे थे, ख्वातीन रोया करती थी। आज मदीना यतीम हो गया। लोग चारों तरफ खड़े थे। उमर नीम बेदार हालत में थे। एक नौजवान आगे बढ़ा, उमर को देखने आया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुश हो जाएं, आपने इस्लाम की खिदमत की, अदल किया, इंसाफ कायम की, दुनिया फतह कर ली, सब आपसे राजी हैं। उमर ने सर उठाया, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह परवास कर गई, जमीन लरज गई, मदीना रो पड़ा, सबका दिल टूट गया। औरतें, बूढ़े, बच्चे, नौजवान सब रो रहे थे। मदीना की गलियों में एक गमगीन हवा चल रही थी। हजरत अली ने फरमाया, उमर के जाने के बाद फितने ऐसे घुल गए जैसे दरवाजे के पट टूट जाएं। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, उमर के जाने के बाद इस्लाम ऐसा कमजोर हो गया जैसे दीवारों से सुतून निकाल लिया जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रो कर कहते थे, उमर के बाद हमने कोई महफूज रात नहीं देखी। ये उमर का मुकाम था। मेरी बहनों, हम ऐसे लोगों की उम्मत हैं जिनके दिल में हजरत उमर जैसे लोग थे। वो उमर जिनके सामने दुनिया की दो सुपर पावर्स झुक गई, लेकिन वो रात को उठकर रोने लगते थे। या अल्लाह, उमर की मगफिरत कर दे। या अल्लाह, उमर से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दे। ये हमेशा कहा करते थे। हमें सोचना चाहिए, क्या हम अपने दिल में थोड़ा सा भी उमर वाला खौफ रखते हैं? क्या हम रात को अल्लाह से बात करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में अदल करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में इंसाफ कर पाते हैं? क्या हम अपनी पड़ोसी के हाल से वाकिफ हैं? क्या हम दूसरों का हक मारते हैं? क्या हम खुलूस से अल्लाह की राह पर चलते हैं? ऐ अल्लाह, हमें भी उमर जैसी हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दिलों को ईमान से भर दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमें वो जिंदगी अता फरमा जो उमर की जिंदगी की तरह नूरे अदल, खौफे खुदा और ईमान से भरी हो। आमीन सुम्मा आमीन।